السلام علیکم. سیشن 11 ہے. 11 سے لے کر 20 تک ہم ایڈوانسڈ چیزیں سیکھیں گے, کچھ اور اپڈیٹڈ چیزیں, ایڈوانس گرامر, ووکیبلری اور چیزیں. سیشن 11 کا پارٹ 1 ہے یہ. پہلے گرامر, پھر آئے گا ووکیبلری اینڈ دین مزید چیزیں آئیں گی اس میں. سب سے پہلے گرامر کا جو پارٹ سیکھیں گے اس میں ہم کین, کوڈ, مے, مائٹ کے یوزز سیکھیں گے پلس کمپاؤنڈ ناؤن سیکھیں گے. تو یہ ماڈلز جو ہیں کین, کوڈ, مے, مائٹ اور کمپاؤنڈ ناؤنس, یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے کیونکہ یہ زیادہ تر یوز ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پر. سب سے پہلے ہم کین کا سینٹنس اسٹرکچر دیکھتے ہیں کہ یہ جملہ کیسے بنتا ہے. یو کین پاس دا ٹیسٹ, تم ٹیسٹ پاس کر سکتے ہو. تم ٹیسٹ پاس کر سکتے ہو. کر سکنا, ایبلٹی دکھانا, امکان دکھانا, اس کے لیے ہم کین یوز کرتے ہیں. زیادہ تر یوز ہوتا ہے اسپوکن انگلش میں پلس ریٹن انگلش میں. تو یو جیسے سبجیکٹس ہوتے ہیں, آئی, وہ, یو, دے, وہ تو فرسٹ آ رہا ہے. اس کے بعد کین اور بعد میں پاس دا ٹیسٹ. یو کین پاس دا ٹیسٹ. اور اگر نیگیٹو بنانا ہے تو یو کینٹ پاس دا ٹیسٹ. سمپل ہے. پر یاد رکھیں یہ جب بیچ میں ورڈ آتا ہے کین تو اس کا پروننسیشن ہوتا ہے کن. کین نہیں, کن. یو کین پاس دا ٹیسٹ, ناٹ یو کین. ڈونٹ اوپن یور ماؤتھ. یو کین, ناٹ کین. تو یو کین ناٹ پاس دا ٹیسٹ اور یو کانٹ. ان امریکن انگلش یو کینٹ, برٹش یو کانٹ. آپ کے اوپر ہے آپ کون سا ماڈل یوز کر رہے ہو, کون سی ویرائٹی یوز کر رہے ہو. یو کینٹ پاس دا ٹیسٹ. ٹھیک ہے, یعنی یو کین ناٹ پاس دا ٹیسٹ. اور کوشچن, سوال بنانا ہو تو کین کو آگے لگا دو. کین یو پاس دا ٹیسٹ. اور اگر WH کوشچن کے ساتھ سوال بنانا ہے, ہاؤ کین یو پاس دا ٹیسٹ, کیسے ٹیسٹ پاس کر سکتے ہو. ہاؤ کین یو ڈو دس, یہ تم کیسے کر سکتے ہو. تو کین یو از کوشچن. کین یو کم, کیا تم آ سکتے ہو. کین یو اسپیک انگلش, کیا انگلش بول سکتے ہو. کین یو رن, کیا رن کر سکتے ہو, بھاگ سکتے ہو. کین یو واک, کیا چل سکتے ہو. کین یو ریڈ فاسٹر, کیا تم تیز پڑھ سکتے ہو. کین یو سوال. اور کین ہی کم, کیا وہ آ سکتا ہے. کین شی کم, کیا وہ آ سکتی ہے. کین دے انوائٹ اس, کیا وہ ہمیں دعوت دے سکتے ہیں. کین دے الاؤ اس, کیا وہ ہمیں اجازت دے سکتے ہیں. تو سکنا یعنی آر دے ایبل ٹو ڈو دس, کیا یہ کرنے کے لائق ہے, کیا ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو آپ سمجھ گئے کہ کوشچن کیسے بنتا ہے, نیگیٹو کیسے بنتا ہے صرف ناٹ لگانے سے, اور سمپل پازیٹیو سینٹنس بنتا ہے. یو کین رن, یو کین ویٹ, یو کین اسپیک, یو کین ٹرائی, تم ٹرائی کر سکتے ہو. شی کین ٹرائی. کینز نہیں ہوتا کہ ہی کینز, شی کینز, جو ایس لگتا ہے وہ صرف پریزنٹ سمپل میں لگتا ہے ایس. باقی ماڈلز میں ایس وغیرہ کا کوئی کام نہیں ہے. اس کا کب یوز کرتے ہیں ہم, یہ کہاں کب یوز ہوتا ہے. یہ یوز ہوتا ہے پرمیشن کے لیے, اجازت لینی ہو یا اجازت دینی ہو, اس کے لیے یوز ہوتا ہے. مثال کے طور پہ, کیا میں تمہارا پین لے سکتا ہوں. کین آئی ٹیک یور پین. کین آئی سٹ ہیئر. کین آئی ٹیک دا چیئر. کین آئی لیو. یہ اجازت لے رہے ہو. اجازت دینی ہو, یو کین لیو, یو کین کم, یو کین ڈو اٹ, یو کین ٹیک مائی بک. یہ اجازت دینا اور اجازت لینا. فار ایگزامپل, کین آئی ٹیک یور پین, یو کین ناٹ پارک ہیئر, یعنی وہ اجازت نہیں دے رہا. دوسرا اس کا یوز ہے ایبلٹی, قابلیت, طاقت, ہمت. وی کین سالو دس, ہم اس کو حل کر سکتے ہیں. کین یو سوئم, کیا اس لائق ہو کہ تم سوئم کر سکتے. کین یو فائٹ, کیا تم لڑ سکتے ہو, اتنی جرأت ہے. ایبلٹی کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. اور ایبلٹی کے پرسیپشنز بھی ہوتے ہیں. ایک ایبلٹی ہوتی ہے فزیکل, ایک ہوتی ہے کیپیبلٹیز. وہ ہوتی ہے مینٹل ایبلٹی کہ سالو کر سکتے ہو, یہ
क्या तुम सोच सकते हो? गहरा, perception. We often use can with verbs of perception such as hear, see, smell, taste and mental process. इन्हीं लफ्ज़ों के साथ हम can यूज़ करते हैं जब perception की बात हो. For example, can you smell something? Smell, क्या आ रही है तुम्हें कोई smell आ रही है अजीब सी? Can you smell something? I can hear you. Yes, yes, I can hear you. मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, बोलिए आप. I can guess why you are angry. मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि तू नाराज़ क्यों है, क्योंकि आपने कुछ किया था कल रात, तो इस वजह से आप बात नहीं कर रहे हो. I can guess why you are angry. I can understand his problem. मैं इसकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ. यानी जो परसेप्शन है, एबिलिटीज़ हैं परसेप्शन की, उसमें भी ये यूज़ होता है. जनरल ट्रूथ, वो जो हमेशा सच होता है, उसमें फायर कैन किल यू, आग तुम्हें मार सकती है. जनरल ट्रूथ है, ऑफ कोर्स इट कैन किल यू. फायरवर्क्स, पटाखे जो फोड़ते हैं मुख्तलिफ त्यौहार में, फायरवर्क्स कैन फ्राइटन कैट्स, वो बिल्लियों को डराती हैं, कुत्तों को डराती हैं. फायरवर्क डम डम डम, वो बेचारे जानवर डर जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, कोने में जाकर छुप जाते हैं, क्या हो रहा है पता नहीं. डॉग्स कैन बी विशियस, कुत्ते कभी खतरनाक हो सकते हैं, खा सकते हैं आपको, आप मर सकते हो उनके बाइट से. दीज आर जनरल ट्रूथ. तो जनरल ट्रूथ की वजह से भी हम कैन यूज करते हैं. कांट या कैंट नेगेटिव है मस्ट का. फॉर एग्जाम्पल, you can't park here means you must not park here. The same mean, you must park here, you can't park here. यानी हो ही नहीं सकता तू यहाँ पार्क करे, because it's the government parking or this reserved parking. I can't be, oh sorry, it can't be mine. ये it है actually. It can't be mine. It's blue and mine is black. ये गाड़ी मेरी नहीं हो सकती, ये ब्लू कलर की है, मेरी ब्लैक कलर की. It can't be mine. It, yeah, it actually mistakes है. It can't be mine. Uses of can for request. ये request के लिए भी यूज होता है, जब किसी से request करें, एहतराम के साथ तलब करें किसी चीज़ को, या किसी को request करें. Can you fill this form? क्या ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं? ये request है एक. Can you help me with this? क्या इस चीज़ के साथ मेरी हेल्प कर सकते हो, मुझे समझ में नहीं आ रही. रिक्वेस्ट है ना, उसकी मर्जी ये करे ना करे, बट यू रिक्वेस्ट हिम और हर. पॉसिबिलिटी के लिए भी ये यूज होता है जब इम्कान हो किसी चीज़ का कि ये हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन कम इन जून, आई एम ऑल्सो फ्री, और आई विल ऑल्सो बी फ्री बाय जून. ये पॉसिबिलिटी है कि तू आ सकता है जून में, मैं भी फ्री हूँगा. How can you reduce weight when you eat a lot of chocolate? कैसे हो सकता है कि तू इतनी चॉकलेट खा रहे हो फिर भी वजन कम कर रहे हो? पॉसिबिलिटी एक चीज़. It can be cold at night. रात में ठंड हो सकती है इस एरिया में, पहाड़ी एरिया है, कंबल ले लें. सो एक पॉसिबिलिटी के लिए भी can का यूज़ होता है. could का हम सीखते हैं थोड़ा सा, can के बाद could, ये साथ साथ आते हैं. जैसे कैन का स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, वैसा ही कुड का है. फॉर एग्जाम्पल, वी कुड हैव लंच, हम लंच कर सकते हैं. सो वी ये पास्ट में भी यूज होता है, कर सके, फ्यूचर में भी यूज होता है, कर सकेंगे. हम सीखेंगे अभी स्टेप बाय स्टेप. सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसा ही है, वी, यू, दे, सब्जेक्ट के बाद कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव, हैड नहीं. We could have lunch, हम लंच कर सकते हैं, कर सके, कर सकेंगे. तीनों मीनिंग आती हैं इसकी, हम सीखेंगे अभी वन बाय वन. नेगेटिव होगा couldn't, we couldn't have lunch, couldn't have lunch, हम लंच नहीं कर सके या कर सकेंगे. could we have lunch, क्या हम लंच कर सकेंगे वहाँ? could we couldn't कहने की ज़रूरत नहीं है. we couldn't have lunch. could we, how could you, क्वेश्चन करना है. could you, how could you do that, how could you do this,
why could you do this, why could they do this, क्वेश्चन करना हो खुद पहले। तो could यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए जब इम्कान हो किसी चीज का। इट कुड बी ब्लू, आई एम नॉट श्योर। एक चीज देखी आपने, यकीन नहीं है, शायद ब्लू हो, मुझे पता नहीं। इट कुड बी ब्लू, इट कुड बी ब्लैक, इट कुड बी एक्सपेंसिव, शायद वो महंगा हो, पता नहीं है, पॉसिबिलिटी है। इट कुड गेट डेंजरस, शायद ये खतरनाक हो जाए। समथिंग यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर पॉसिबिलिटी, कुड यूज करो फ्यूचर के लिए कि ये महंगा हो सकता है, अब जाएंगे फिर देखेंगे। ये होटल है, एक होटल आपने देखा, चलो यहाँ चेक इन कर दें। इट कुड बी एक्सपेंसिव मैन, इट लुक्स ब्यूटीफुल। पॉसिबिलिटी तो है ना, देखने से आपको नॉलेज तो है, पता तो चल गया शायद ये महंगा हो, खूबसूरत है बड़ा, उसके लिए भी यूज होता है। कुड यूज होता है सजेशंस के लिए, जब आप सजेस्ट करो किसी चीज को, कहो कि यार ये अच्छी चीज है ले ले, या पॉसिबल सजेशन, क्या मशवरा देते हो जिसको, उसमें भी यूज होता है। वी कुड गो देयर टुनाइट, हम वहाँ चल सकते हैं ना आज रात, क्या कहते हो, यानी एक सजेशन, दोस्तों से बात। वी कुड गो देयर, वी कुड हैव लंच समवेयर, सजेशन। कुड यू कम अर्लियर इन द मीटिंग, ये भी सजेशन है पर एज अ रिक्वेस्ट की, क्या आप जल्दी आ सकते हो मीटिंग में, यानी आप एक इनडायरेक्ट सजेशन दे रहे हो उसको कि जल्दी आए, ठीक है। तो उसमें भी ये यूज होता है। परमिशन, इजाजत के लिए भी यूज होता है कुड आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन, क्या तुमसे मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, बहुत अदब के साथ। कैन आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन भी सही है, कुड आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन, ये थोड़ा ज़्यादा, इसमें रेस्पेक्ट, एहतराम ज़्यादा है, इज़्ज़त ज़्यादा दो जिसको। कुड आई, उसे यूज़ करो। आपकी लेवल का हो, दोस्त हो, कैन आई। आपसे बड़ा हो, बॉस हो, टीचर हो, पेरेंट्स हो, रेस्पेक्ट हो उनकी, कुड आई, ये फ़र्क है। कुड आई लीव अर्लियर टुडे, क्या आज मैं जल्दी जा सकता हूँ, आप बॉस से पूछ रहे हो, मालिक से पूछ रहे हो, ज़्यादा एहतराम से पूछ रहे हो, कुड आई। इसके बाद हम सीखेंगे मैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर उसकी ऐसा है कि यू मे लीव, तुम जा सकते हो। मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। यू मे लीव, शी मे लीव, ही मे लीव, बस मे आएगी, मे। नेगेटिव, यू मे नॉट लीव, तुम नहीं जा सकते। यू मे नॉट कम, तुम नहीं आ सकते, यानी इजाज़त दे रहे हो कि ना करो ऐसा, यानी एक प्रोहिबिशन है, मना कर रहे हो किसी चीज़। क्वेश्चन, मे वी लीव, क्या हम जा सकते हैं। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई टेक योर पेन, मे आई, कैन आई। मे ज़्यादा पोलाइट है कैन से, कैन फ्रेंडली है, मे में थोड़ा एहतराम ज़्यादा है, और कुड में और ज़्यादा है। तो ये परमिशन के लिए यूज़ होता है। मे आई लीव द रूम, क्या मैं जाऊँ कमरा छोड़ के, मुझे काम यार। मे आई लीव द रूम, यू आर सिटिंग इन अ रूम, कमरे में बैठे हो, इजाज़त ले रहे हो। मे आई लीव द रूम, यस यू मे, ये परमिशन जवाब, हाँ तू जा सकता है। नो यू मे नॉट, नहीं बैठे रहो। तो मे उसके लिए भी यूज़ होता है। पॉसिबिलिटी के लिए, जब इम्कान हो किसी चीज़ का, शायद की जब बात हो सॉरी, शायद की जब बात हो, उसमें भी यूज़ कर सकते हो। इट मे रेन टुडे, शायद आज बरसात हो। दे मे कम लेट, शायद वो आज देर से आए। दे मे नॉट बी होम, शायद वो घर पे ना हो। ही मे नॉट बी बिजी, शायद वो बिजी ना हो। ही मे बी बिजी, शायद वो बिजी हो। ही मे गेट एंग्री, शायद वो नाराज हो जाए। ही मे स्पैंक यू, शायद वो तुम्हें थप्पड़ मारे। दे मे किल अस, शायद वो हमें मार दें अगर ये बात करें तो पॉसिबिलिटी जिस चीज़ की हो उसमें ये यूज़ होता है। और डिफरेंट ओपिनियन के लिए भी, आई मे बी रॉन्ग बट
जब ओपिनियन हो आपका डिफरेंट, किसी बंदे ने कुछ कहा, आपने कहा शायद मैं गलत हूँ, पर फिर कहो कि पर ये चीज़ ठीक नहीं है, आई मे बी रॉन्ग बट दिस नॉट गुड। आपका ओपिनियन डिफरेंट है, आपकी राय डिफरेंट है, तो यूज़ कर सकते हैं। द फोन मे वेल कॉस्ट मोर बट, यानी इसमें बट ज़रूर लगाएं क्योंकि आप डिफरेंट ओपिनियन देने वाले हो। यानी ठीक है, शायद ये ऐसी हो, पर मेरे ख्याल में ये नहीं है। यू मे बी राइट, तुम सही हो सकते हो, बट व्हाट आई नो, जो मैं जानता हूँ। तो आप ऐसे करके आप आगे जुमला बना सकते हो। अब माइट का देखते हैं सेंटेंस कैसे बनता है। दे माइट बी लेट, वो शायद लेट हों। ये मे माइट एक जैसे हैं, बस माइट थोड़ा कम है मे से। मे बी लेट 50% चांसेस हैं कि वो लेट हो जाएं। दे माइट बी लेट 30% चांसेस हैं कि वो लेट हो जाएं, यानी थोड़ा वीक है ये। मे में चांसेस बढ़ जाएंगे, माइट में चांसेस कम हो जाएंगे। नेगेटिव बनाना है तो दे माइट नॉट बी लेट, शायद वो लेट ना हो। क्वेश्चन, माइट दिस बी योर्स, शायद ये आपकी हो। एक कलम पड़ा हुआ है, पेन पड़ा हुआ, पड़ी हुई है, पड़ा हुआ है, क्या शायद ये आपकी हो? पूछ रहे हो उससे, माइट बी दिस योर्स। तो माइट भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। The possibility I might go to Japan to study Japanese, शायद मैं जापान जाऊं जापानीज स्टडीज करने। The dog might bark, रात में जा रहे हो, कुत्ता बैठा हुआ है, पॉसिबिलिटी तो है ना 30%, शायद वो कुत्ता भौंके हमें देख के। When we pass by the gate, so the dog might bark when we pass by the gate, वो गेट पे बैठा हुआ है, जैसे पास करेंगे शायद वो भौंके। They might not like very hot food, पॉसिबिलिटी है कि उनको गर्म खाना, ज़्यादा गर्म खाना पसंद ना हो, थोड़ा नॉर्मल हो, तो उसी हिसाब से हमें सर्व करना चाहिए। They might be busy right now, इस वक्त वो बिजी होंगे, 30% चांसेस उनके बिजीनेस के। They may be busy, 50% चांसेस हैं कि वो बिजी होंगे। They might be busy, 30% चांसेस हैं कि वो बिजी होंगे। They are busy, 100% मुझे पता है कि वो बिजी हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो बिजी होते हैं इस वक्त। तो माइट सजेशन के लिए भी यूज होता है जब मशवरा देना हो। यू माइट लाइक दिस ड्रेस, शॉपिंग कर रहे हो, ड्रेस आपको पसंद आई, उसको देखा कि शायद यार तुम्हें पसंद आ जाए, देखो तो सही, यानी एक सजेशन है कि ये ले लो, अच्छी है। यू माइट लाइक दिस, यू माइट चेंज द जॉब, सजेशन दे रहे हो उसको, जॉब चेंज करनी चाहिए, चाहिए का सेंस आएगा यहाँ, एक सजेशन, मशवरा है। क्रिटिसिज्म, जब तंजिया बात करो, क्रिटिसाइज करो किसी चीज़ पर, आप डिफरेंट ओपिनियन हो आपका, उसमें भी यूज होता है। यू माइट हैव टोल्ड मी यू weren't कमिंग होम फॉर डिनर, क्रिटिसाइज, यार तुम्हें मुझे बताना था, बताना चाहिए होता था, या बताते आप कि आप डिनर के लिए नहीं आ रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो कि यार तुम्हें आना चाहिए, क्यों नहीं बताया। तो उस सेंस में भी यूज होता है। मे, माइट, कैन, कुड के बाद हम थोड़ा सा कंपाउंड नाउन्स के बारे में सीखेंगे कि ये क्या होते हैं। कंपाउंड का मकसद है दो, नाउन का मकसद है नाउन्स, इसम, दो नाउन्स साथ जब आते हैं उनको कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे कंपाउंड सेंटेंस होता है, आगे पढ़ोगे। वन वर्ड, हाउस कीपर, शोकेस, बुक मार्क, फुटबॉल। फुट भी नाउन है, बॉल भी नाउन है, बट यूज हुआ है ऐसे के वन वर्ड है, पर इसमें दो नाउन्स हैं, फुट पाँव, बॉल, फुटबॉल। हैंड बैग, बुक मार्क, शो केस, हाउस कीपर, ये वन वर्ड के कंपाउंड नाउन्स हैं जो एक वर्ड हो गया है अब, पर हैं दो नाउन्स इसमें अंदर। फिर हुआ हाइफनेटेड, यानी ये लाइन होगी उसमें अंदर। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये कंपाउंड नाउन्स। रनर अप, यानी मैं फर्स्ट नंबर आया हूँ, ये दूसरे पे, यानी रनर अप है ये। ग्रेट ग्रैंड मदर, किलोवाट आवर।
more than one word, dining room, ice cream, maid of honor, music box. तो compound nouns एक वर्ड भी हो सकता है जिसमें दो नाउन्स हो अंदर, हाइफिनेटेड एक लाइन वाला, वो मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, रनर अप, ऐसे भी हो सकते हैं, या दो वर्ड्स हो सकते हैं जैसे डाइनिंग रूम, डाइनिंग एरिया, डाइनिंग टेबल, आइस क्रीम, मेड ऑफ आवर. तो ये कंपाउंड नाउन्स. टू नाउन्स टुगेदर नॉर्मली लाइक वीडियो गेम, टच स्क्रीन, लैपटॉप, फादर इन लॉ. यू लर्न इट राइट. कंपाउंड नाउन्स के अगर प्लूरल्स बनाने हो, जमा बनाना हो, मदर इन लॉ एक सास, मदर्स इन लॉ ज़्यादा से, यानी पहले वर्ड में एस लगाया. वन वर्ड जैसे फुटबॉल्स, हाइफिनेटेड इज मदर्स इन लॉ. मोर देन वन वर्ड, म्यूजिक बॉक्सेस. तो देखना होता है कि कहाँ पर प्लूरल बनाना है, जमा कौन सा बनाना है. बॉक्सेस बनाए, मदर्स, फादर्स, ब्रदर्स, ब्रदर्स इन लॉ, 3 ब्रदर्स इन लॉ. इसलिए कि ब्रदर इन लॉज, ब्रदर्स इन लॉ, एस लगेगी ब्रदर में. Is a rule in compounds. The second component takes the plural. Housewife, housewives. Toothbrush, toothbrushes. Boy Scout, Boy Scouts. Maid servant, maid servants. ज़्यादातर ऐसे बनते हैं इनके प्लूरल नाउन्स. हाउसेज वाइफ नहीं होगा, हाउस तो एक है ना, हाउस वाइव्स. टूथब्रशेस, ब्रश तो एक है ना, टीथ तो ज़्यादा है, टीथ ब्रश नहीं कहेंगे, टूथ ब्रशेस. सो रिमेंबर दैट. तो ये थे कुछ ग्रामर के बारे में हमने सीखा. पार्ट 2 में हम वोकैबुलरी के बारे में सीखेंगे.